Anyways, and now I would like to call our next panelist, Mr. Mohsen Lodi, who is from NUST. Mr. Mohsen Lodi. Assalamu alaikum. Thank you so much, Asim, for giving me this opportunity to share my views on today's session, which is strategic networking. My worthy participants have already spoken about strategic networking, and they have given you very good tips. My question to you is, why do we network? What is the need to network? What is the need? Tell me, why do we need to network? Yes. For our professional growth. Okay. Do you think it can come through networking? Yes, definitely. Okay. This is, I respect your opinion. Anyone else? For yes. grooming our personalities. For grooming your personality, you need to have networking. I respect your opinion. For better communication. Okay, very good. Anything else? For better what? For better opportunities. Very good. I need wisdom. You need wisdom. Okay, great. Basically, you network for relationship building. That is the major purpose. And let me share with you a research. Research says 80% of your success comes from relationship. It's not the education. It is not the experience. It is not anything else. It is all relationship. Now, what is important in relationship? That is to be seen. If you keep on networking, meeting 1,000 people, and it's not working in your favor, there must be something wrong somewhere then. You need 3 things. I'm going to abridge everything now because I've got only 5 minutes here. You need 3 things in relationship. First is trust. Second is respect. And third one is care. Now, you tell me how many people are trustworthy in our society, and how much are you trustworthy in this society? We need to look upon it basically. And I always see people coming up with excuses, and I basically observe them. There is a disease called executitis, making excuses all the time. You think you are going to respect them? You think you are going to trust them? No way, sir. You can only develop trust through 2 things. A, being characterful, and B, being competent. Both are mutually inclusive. You cannot be competent and uncharacterful that you think you will earn the trust because you have got 7 PhDs in your bag. No way. Or on the other side, you are very characterful, you speak truth, you say 5 times prayers, you follow the deen, everything hunky-dory, but on the other side, you are not competent. People are not going to trust you. So it's very essential that you need to have both, which is mutually inclusive, being characterful and being competent. This is the first condition. And being competent is not having only knowledge and degrees, by the way. It is having skills. Your value in the marketplace, not in your home, not in your neighborhood, is because of only what? Because of having more skills. There are 2 MBAs having same degree. One gets double salary, the other one's half of that salary. Why is that? Because he has got more skills. You need to learn skills. And what are those skills? It's the communication skills. It is the listening skills. It is the questioning skills. It is the interpersonal skills. It is the emotional intelligence. It is all life skills which, regrettably, they are not taught in the universities. So, to me, it is not networking. It is you need to have right working. You need to have the right people. If you are right, you will attract
right people, because according to the law of attraction, what happens? Like attracts the like. And let me share with you another secret. You are a product of 5 people you mostly meet. You are a product of 5 people. Your habits will be of the 5 people you mostly meet. So you got to be very selective, sir. How come? Because there are 3 types of people in the world: energy takers, energy wasters, and energy givers. I need not to shed light upon energy takers and energy wasters. Associate yourself with the positive people. And that's all my message. And you need to, according to Pareto principles, which says 20% of your efforts bring 80% of your results. Mere Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, he didn't have many networking. He had only 4 very die-hard friends and companions and comrades. You need to have right people. If you are really looking for success, have objective in your life. इस नेटवर्किंग का क्या फ़ायदा है? साथ में दूसरे कमरे में भाई होता है, हम एक दूसरे से सलाम नहीं लेते हैं, और बाहर जाके हमारे अस्सलाम वालेकुम भी स्टेटस सेंट्रिक हैं. डीजी आए तो उससे हम सर कैसे हाल हैं आपके, और वो बेचारा जो गार्ड है उसको हम सलाम नहीं करते हैं. दिस इज नॉट अ नेटवर्किंग. Allah subhanahu wa ta'ala has created us equal. And let me tell you one thing, the real secret is taking care of these people whom we consider they are very menial. Let me tell you, you will always remain fulfilled and happy. That is the networking you require. Thank you so much, sir. Thank you very much, me. मोहसिन लोधी साहब, बड़ा मज़ा है आपको सुन के. आपके लिए 2 दफ़ा तालियां बनी. दिस मीन्स कि एवरीबडी लव्ड यू. थैंक यू सर. Now I would like to call upon our last panelist, and then we'll go for the panel discussion and the Q&A. Our last panelist for today is Colonel Retired Hamid Butt, working for the Strategic Organization. Colonel Retired Hamid Butt, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unfortunately, I am not really prepared to communicate on the subject, but I would request you to smile. And I have got nothing to deliver here except smile, because I am not prepared. एक जगह मैंने सुना कि जब आप नौजवान होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये खातून अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है. आफ्टर 30 years आप सारी कैलकुलेशंस के बाद समझते हैं कि ये एक खातून अगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाए तो मैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन सकता हूँ. और ये कड़वी हकीकत जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बुकिश नहीं है. ना तो शेख सादी की किसी किताब में ये मैंने पढ़ी, ना हाफिज शिराजी ने इसका जिक्र किया, मैं खुद ही इसका जिक्र कर रहा हूँ. और ये वो कड़वी हकीकतें हैं जो कि अगर हम याद रखें तो हम ज़िंदगी में मज़ीद कामयाब हो सकते हैं. लेकिन होता यह है कि ना तो वो खातून आपकी ज़िंदगी में आती है जिसको आप एस्पायर कर रहे होते हैं, और ना वो खातून आपकी ज़िंदगी से जाती है जिसे आप जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं. इसके बावजूद आप दुनिया के कामयाब तरीन और खुशहाल तरीन और मसरूर तरीन इंसान होते हैं, बन सकते हैं, बनते हैं, नज़र आते हैं. इसलिए ना तो किसी के पीछे पड़ना चाहिए और ना किसी से जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए. एवरीबॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट. हकीकत ये है कि ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, हम एक पुलसरात पे चल रहे हैं, और ये पुलसरात से किसी वक्त भी आप स्लिप होके या तो लव के खड्डे में गिर जाएंगे और या हेट के खड्डे में गिर जाएंगे.
हम इन दोनों से बच के हमें चलना है और बहुत मोहतात होकर चलना है। ना तो लव में इस तरह से गिरें कि औंधे मुंह गिरें और फिर उठ ना सकें, और ना ही हेट के गड्ढे में गिरें कि रेस्क्यू 1122 आके हमें वहां से निकाले। So as our colleagues shared their experiences, ये नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दोनों ही चीज़ें एक्सट्रीम हैं। अगर हम ये कहें कि हम बग़ैर ताल्लुकात के ज़िंदा नहीं रह सकते तो ये भी झूठ है। देयर आर लॉट मेनी ग्रेट पीपल जो कि बग़ैर किसी दोस्ती के, बग़ैर ताल्लुकात के, बग़ैर नेटवर्किंग के, बग़ैर किसी भी चीज़ के दुनिया के कामयाब तरीन, मौसर तरीन और बेहतरीन इंसान रहे हैं, आज भी हैं। आप में से बेशुमार लोगों ने मैस्लो का जिक्र सुना होगा, और मैस्लो की एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की जो 16 ट्रेट्स उसने बताई हैं, वो अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स। और हैरत होती है कि इस तरह का इंसान वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है जो 1 in million वो बंदा है, 1 in million, बहुत आम अवेलेबल नहीं होता, बट वो एक अजीबोगरीब बंदा होता है। वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेता, वो कहीं से शागिर्दी इख्तियार नहीं करता, उसको कोई पढ़ाता नहीं है, कोई फीड नहीं करता, बट ही और शी इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन वो होता है कि अगर 27 years जेल में अकेले गुजारने पड़े, काल कोठड़ी में, तो वो बहुत इंतहाई खुशी के साथ, इंतहाई इत्मीनान के साथ गुजार सकता है। वो किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस नहीं करता, और जब बाहर निकलता है तो लीडर ऑफ मैन होता है। 27 years गुजार के बग़ैर किसी दोस्ती के, बग़ैर नेटवर्किंग के होता है। अब ये होता है कैसे होता है? हम अगर 2 दिन अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं तो शायद हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर 4 दिन हमारा कोई दोस्त हमें कॉल नहीं करता तो हमें परेशानी होती है। अगर 1-2 दिन हमें ऐसी जगह पे कहीं जाना पड़ता है जहाँ पे देयर आर नॉट लॉट मेनी पीपल अराउंड, आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है, एंड वी शुड ट्राई टू बी अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। आपके अगर 3000 फ्रेंड्स हों तो आप सबको एकोमोडेट कर सकें, ये वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है। आपका अगर दुनिया में कोई दोस्त ना हो और कोई दोस्त बनने का इम्कान ना हो, मुस्तकबिल में कोई इम्कान ना हो कि आपका कोई दोस्त बनेगा, तब भी आप एक इंतहाई इफेक्टिव लाइफ गुजार रहे हों, और आपका जो कोर्स ऑफ लाइफ है वो उसी तरह से चल रहा हो जिस तरह से आप उसको चलाना चाहते हैं। मेरे जहन में एक छोटी सी ज़ाती मिसाल आ रही है। एक तो ये था कि एक दफ़ा मैं मेरा एडोलेसेंस बच्चा जो है उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए गया, तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत तन्हा है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा कि इसके तो बहुत दोस्त हैं और ये खेलता भी है और घर में भी बहुत से लोग हैं। उसने कहा नहीं, ही इज़ ऑल अलोन, इसका कोई इंटीमेट दोस्त नहीं है जिससे ये अपने दिल का हाल बयान कर सके। मुझे उस वक्त इतनी अजियत हुई ये सुन के, तो मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये अजियतनाक तन्हाई का शिकार जो मिलियंस हैं, जो हमारे हमवतन हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, बहुत से हैं जो इस अजियत से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इसको हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते। वो जो पुराने ज़माने में किसी ने कहा था कि कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में। आप यकीन करें, ये जो थेरेपी की हम बात करते हैं और साइकोलॉजिकल हेल्प की बात करते हैं और काउंसलिंग की बात करते हैं, ये क्या है? इट इज़ जस्ट अ फोरम जो हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको सुनने वाला कोई नहीं होता। आप एक बंदा तलाश करते हैं जो 3 घंटे तक बैठ के आपकी बात सुनता है। देयर इज नथिंग अदर देन दैट। इसमें कोई साइंस, कोई टेक्निक, कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन, नथिंग। एक साइलेंट लिसनर आपको मिलता है और आप उससे वो सारी बातें करते हैं जो आप किसी और से नहीं कर सकते, और आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि कि हम कोई एक साजी ज़रूर तलाश करें और ढूंढें कि कोई एक बंदा तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो हम उसके साथ शेयर करें। अभी बहुत सारी बातें जब हम कर रहे हैं तो हर चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ टाइम। और टाइम जो है ना, इस एंगल से अगर आप इस सोशल नेटवर्किंग को देखें तो
आप बहुत सारी चीज़ों को एवेल्यूएट कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। अ पर्सन ऑफ 60, अगर आप अपने लास्ट डिकेड्स को देखें और कैलकुलेट करें कि वंस यू वर 20 तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड्स थे 10, उनकी लिस्ट बनाएं, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, एंड देन उसको चेक करें कि वो जो 20 में 10 थे वो 30 में थे या नहीं थे, 40 में थे या नहीं थे, 50 में थे या नहीं थे। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि वो 20 आज तक आपने मेंटेन, उस लिस्ट में कोई चेंज ना आई हो, वो 10 के 10 आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आज भी मौजूद हैं। अगर एवरी 10 ईयर्स आपकी वो लिस्ट चेंज हो रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 20 में वो 10 और थे, बट 30 में और आगे और आगे। अगर ये हो रहा है कि 20 में वो जो 10 आपके फ्रेंड थे, जब आप 60 के हुए तो वो 10 आपके दुश्मन बन गए, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। यहाँ पे भी ये है कि वो 20 जो थे वो दुश्मन क्यों बन गए। आइदर आपके साथ कोई एरर है या मिस्टेक है, या उनके साथ कोई मिस्टेक है। होना ये चाहिए, जो मोस्ट बैलेंस्ड अप्रोच है, कि ना तो वो 10 की जो लिस्ट है वो बहुत स्टेबल होनी चाहिए कि वो 10 के 10 ही रहें, उसमें चेंजेस आती रहनी चाहिए, लेकिन आइडियल इज कि उनमें से कम 5 जो है ना वो सर्वाइव कर जाएं आपके। पूरी लिस्ट अगर चेंज होगी तो इट इज़ नॉट नॉर्मल। आपके 5 दोस्त कम से कम ऐसे होने चाहिए जो थ्रू आउट आपकी लाइफ वो चलते रहें। अगर चेंज नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि यू आर रेजिस्टेंट टू न्यू फ्रेंडशिप और न्यू रिलेशनशिप। अगर ये है तो दिस एबनॉर्मल, इसको आप मेंटेन ना करें। अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं आपकी फ्रेंडशिप में तो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपकी लिस्ट जब आप 20 में थे तो ब्लैंक थी, आपने 10 पीपल की लिस्ट बनाने की कोशिश की बट यू कुड नॉट, आपको पता चला कि आपका कोई दोस्त नहीं है, 30 में भी नहीं था, 40 में भी नहीं था, 60 में भी नहीं था, जब आप फौत हो गए तब भी आपका कोई दोस्त नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू से लेके आखिर तक आपका कोई भी दोस्त ना हो। मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि रहा आबाद आलम अहले हिम्मत के न होने से भरे हैं, जिस कदर जामो सबू मैं खाना खाली है। ये ज़रा मुश्किल शेर है, इसको आप समझने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि नेटवर्किंग के ना होने का जो नुकसान है, फ्रेंडशिप के ना होने का जो नुकसान है, और किसी महरम के ना होने का नुकसान ये है कि आपके अंदर शदीद किस्म की टूट फूट होती है, और वो टूट फूट कभी कभार आपकी मौत का बायस भी बन सकती है, विदाउट अ सॉलिड फिजिकल रीज़न। बग़ैर किसी जिस्मानी वजह के आपकी मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इन बिटवीन जो दायरा हमने बनाया है उस दायरे के अंदर रहें, उस दायरे के बाहर न रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, आपने तो सारों को हिला के रख दिया माशाल्लाह। बहुत सारी तालियां बजी। कर्नल साहब के वैसे 30 साल आने और 30 साल वो जाने वाले मसले का मेरे पास हाल ही है कि मुसलमान को 4 शादियां करने की इजाज़त है। अच्छा जी, वील टेक द क्वेश्चंस नाउ, और अगर आप में से किसी ने कमेंट देना तो वो भी दे सकते हैं। सो द पैनल इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस।